Hi everyone, welcome to my channel once again, and in this video we will be talking about a new thing that has never been shared on my channel earlier. So इस वीडियो में हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो आना चाह रहे हैं कनाडा में on a study permit and what provinces would be good for them in the present time अगर they are making up their mind so that they get a permanent resident easily. बट इस जो वीडियो का मकसद है वो है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना और द फर्स्ट कैटेगरी दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस वीडियो इज अबाउट इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम कि कैसे अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं इन प्रोविंसेस में हाउ कैन यू अप्लाई फॉर अ परमानेंट रेजिडेंस. आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच कैटेगरी इन डिटेल बट इस वीडियो में हम सिर्फ इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो कनाडा में किसी और कंट्री से आके पढ़ना चाह रहे हैं and they make up their mind to study in Atlantic provinces. I'll be telling you which those Atlantic provinces are, and then you can make up your mind if this is something that will be beneficial for you. Thank you, and let's start the video. So let's start with the program details. So we will be discussing about Atlantic Immigration Pilot Program. But first of all, let me make it clear that what are the provinces that are covered in this particular program. So these are New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia, or Newfoundland and Labrador. So these are the provinces that are located at the Atlantic coast, and this is why these are called Atlantic provinces, except Quebec, of course. So this particular program is for anyone who is willing to settle in any one of these provinces, and we'll be discussing 3 parts of this program, but in this particular video we will be just talking about one part. But I'll tell you what are the other categories. So there are 3 categories in this particular program. First is Atlantic International Graduate Program. As the name suggests, it is for people who are on a study permit in any of these provinces, and later on you are eligible to apply for a permanent resident. So let me make it clear that these categories would make you eligible to apply for a PR. Either you are already in Canada on a temporary study permit, or you are outside of Canada and you wish to apply for permanent residence. So this is different from express entry and fairly easy as well, with some exceptions, and we'll look at each of them one by one. So the second is Atlantic High Skilled Program. So in High Skilled Program, again, people who are experienced in NOC O, A and B category, they can apply for this. And I'll make a video on it as well. And Atlantic Intermediate Skilled Program is for people working in NOC C and D. Now, International Graduate Program. Who is this program for? Now, International Graduate. International Graduate is कोई भी व्यक्ति जो आउटसाइड कनाडा से इनसाइड कनाडा बट इन प्रोविंसेस में पढ़ने के लिए आया हुआ है. द मोमेंट यू कंप्लीट योर स्टडीज यू विल बी ग्रांटेड और यू आर एलिजिबल रादर फॉर अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेजिडेंस, जो ऐसा बाकी प्रोविंसेस में अभी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओंटारियो में ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिसिसागा, यहाँ कहीं भी पढ़ने आते हैं, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर PR आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज. जैसे ही आपकी स्टडी पूरी होती है, आप PR के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है. बट इस केस में ऐसा नहीं है. द मोमेंट यू कंप्लीट योर स्टडीज, उसके बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए. बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 24 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो पब्लिकली फंडेड हैं, उन्हीं में से आपको स्टडी करनी है, नॉट इन द प्राइवेट कॉलेजेस. उसके बाद है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टडीज यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR. नेक्स्ट इज which makes it different from other provinces, no prior work experience is required. आपको कोई भी work experience की जरूरत नहीं है अगर आप एक international graduate हो इन provinces में और अब आप PR के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो. Language requirement same for study permit, but
far less when you apply for PR. जैसे अब आप इंडिया से for example you want to apply for a student visa, right? So at the moment I believe it's 6.5 overall and 6 each in all the modules. वो आपकी सेम रहेगी when you land here as a student. बट जब आपको PR के लिए अप्लाई करना है इस कैटेगरी में सिर्फ, तो CLB 4 भी चल सकता है. नाउ नेक्स्ट इज इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा. हैव लिव्ड इन एन अटलांटिक प्रोविंस, जो मैंने आपको पहले प्रोविंसेस बताई हैं 4, उनमें आपको रहना जरूरी है एटलीस्ट 16 मंथ्स के लिए पिछले 2 सालों में, राइट? चाहे आपने डिग्री की है, डिप्लोमा की है, उसका कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता खास, बट आपको इस प्रोविंस में रहना 16 महीनों के लिए जरूरी है पिछले 2 साल में. मीट द एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में कि क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको कंप्लीट करनी होंगी. टेक अ लैंग्वेज टेस्ट टू शो यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच. लैंग्वेज टेस्ट इसमें भी लेना है. आज के टाइम में कनाडा में आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रोग्राम दैट डज नॉट रिक्वायर अ लैंग्वेज टेस्ट. आपको आइल्स, खेल, सेल्फ लेना ही होगा इफ यू विश टू अप्लाई फॉर PR. ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है जिसमें आपको जरूरत ना हो. बट इस कैटेगरी में द प्लस पॉइंट इज दैट यू डू नॉट नीड एनी वर्क एक्सपीरियंस, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस. जॉब ऑफर लेटर चाहिए बट 1 साल पूरा होने के बाद आपको PR लगाने का वेट करने की जरूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज एजुकेशन. क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एजुकेशन की? You must meet all of these requirements. जो नीचे 5 requirements हैं. First, you must have at least a 2-year degree, diploma certificate or trade apprenticeship credential from a recognized publicly funded institution in an Atlantic province. आपके पास एटलीस्ट 2 साल का स्टडी प्रोग्राम होना चाहिए जो recognized publicly funded institution से होगा. कुल मिला के यहाँ पे 24 इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे सारी प्रोविंसेस में, अटलांटिक प्रोविंसेस में, और आपको उन्हीं में से कोई स्टडी प्रोग्राम चूज करना है और उन्हीं में आपको वो पूरा करना है. You must have been a full-time student for the entire duration of your studies. ऐसा नहीं है कि आप पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हो, ये फुल टाइम होना चाहिए. Next is you graduated from this institution in 24 months before we receive your permanent resident application. अब PR अप्लाई करने से पहले आपको यहीं से ग्रेजुएट करना होना चाहिए, राइट? दिस इज जरूरी, दिस इज इम्पोर्टेंट. 24 months before we receive your permanent resident, मतलब पिछले 2 साल पहले. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज PR की फाइल लगा रहे हो तो इन पिछले 2 सालों में आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल चुका होना चाहिए, इससे पुराना नहीं. You live in the Atlantic province of the institution granting the education credential for at least 16 months within the 24-month period. जाहिर सी बात है अगर आप इस प्रोविंस से अपनी स्टडी पूरी कर रहे हो तो ये रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी कि आपको पिछले 2 साल में 16 महीने यहाँ रहने की कंडीशन पूरी करनी है, राइट? यू हैड द वीजा और परमिट यू नीडेड टू वर्क, स्टडी और ट्रेन इन कनाडा. इसका क्या मतलब हुआ कि वैलिड आपके पास वीजा होना चाहिए, इलीगली आप एंटर नहीं होने चाहिए इन प्रोविंसेस में. नाउ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं स्टडी परमिट पे जो ऑल ओवर द कनाडा भी एप्लीकेबल हैं. फॉर एग्जांपल इंग्लिश और फ्रेंच एज सेकंड लैंग्वेज कोर्सेज अगर आप यहाँ से करते हैं तो आप PR के लिए एलिजिबल नहीं है, वर्क परमिट के लिए भी एलिजिबल नहीं है. डिस्टेंस लर्निंग अंडरटेकन फ्रॉम मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम. अगर आपने आधे से ज्यादा कोर्स डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पूरा किया है तब भी ये आपको एलिजिबल नहीं करता. अभी आधे से ज्यादा क्यों कर रहा है, पहले ये भी नहीं था क्योंकि ड्यू टू कोविड अब ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, इसलिए दे हैव एडेड दिस पॉइंट. यू कांट अप्लाई इफ यू हैड अ स्कॉलरशिप और फेलोशिप रिक्वायरिंग यू टू रिटर्न टू योर होम कंट्री आफ्टर यू ग्रेजुएट. अगर आपके पास कोई ऐसी स्कॉलरशिप या फेलोशिप है जो चाहती है कि आप वापस अपने वतन पे जाना है, आपको दोबारा अपनी कंट्री में जाना है, तो यू विल नॉट be eligible for this program. Now getting a job offer, as I said, आपको education requirement भी पूरी करनी है, language requirement भी पूरी करनी है जो काफी कम है, और उसके साथ साथ आपके पास एक job offer भी होना चाहिए जो नीचे सारे जो points लिखे हैं उनको पूरा करे. For example, job offer जो है वो एक आप कह सकते हैं कि LMIA ही है, वो designated LMIA होती है, वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर की तरफ से दी जाती है.
the employer has been designated as an employer taking part in the AIP. जो Atlantic Immigration Program में employer part ले रहा है, ये offer letter सिर्फ उसी employer की तरफ से आपको आनी चाहिए, not कि अगर कोई भी, for example, if I have my office in any of these provinces, but मेरे पास वो जॉब ऑफर देने का राइट नहीं है और मैं आपको फिर भी दे दूं, you will not be eligible, right? तो जिन एम्प्लॉयर्स ने अपने आप को डेजिग्नेट करवाया है, अपना इंटरेस्ट शो किया है डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर बनने के लिए इन प्रोविंसेस को, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, राइट, एंड दे हैव अप्लाइड फॉर इट कि हमें बाहर से बंदे मंगवाने हैं क्योंकि हमारी एम्प्लॉयमेंट की जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं, सिर्फ वही आपको जॉब ऑफर लेटर दे सकते हैं। और इसकी पूरी लिस्ट पड़ी है प्रोविंस वाइज, इफ यू वांट आई कैन शेयर इट एज वेल कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स आपको जॉब ऑफर लेटर दे सकते हैं। The job must be full time. क्या conditions हैं? Job full time होनी चाहिए, meaning you will work at least 30 paid hours per week. So full time in Canada means 30 hours per week. Non-seasonal होनी चाहिए, which means that you must be employed throughout the year. उसके बाद ये जॉब टाइप जो है वो नॉक लेवल O, A, B और C में भी हो सकती है। एक्सप्रेस एंट्री में C कैटेगरी नहीं होती है, बट इसमें even if you have a job offer in C, you are eligible to apply for PR under international graduate program. कुछ programs ऐसे हैं जिसमें अगर आपकी कैटेगरी D में भी fall होती है, you can still apply, जो next video में we will be discussing with you. The employer is offering you a job that will last for at least 1 year. At least 1 year का job offer आपके पास ये होना चाहिए. You must meet employment requirements for the job you are offered. Employment requirements क्या होंगी? For example, if you are working as a chef, मान लीजिए, तो आपके पास कोई कोर्स, अगर वो एम्प्लॉयर चाहता है कि मेरे एम्प्लॉई के पास ये कोर्स होना चाहिए, एंड इफ यू हैव दैट कोर्स ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर इट, और तभी आपका जो जॉब ऑफर है वो वैलिड माना जाएगा। नाउ हु इज दिस फॉर? ये प्रोग्राम जो है वो किसके लिए है? अब आप कहेंगे कि हमने तो अगर अभी अप्लाई करना है तो दैट मीन्स वी कुड हैव टेकन एडमिशन 2 years ago in this particular course, क्योंकि ये एक्सटेंड हो गया था, पायलट प्रोग्राम 2021 तक है। बट आई वुड सजेस्ट जो अभी भी स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू कम टू कैनेडा वो अटलांटिक प्रोविंसेस में आए तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स आर इमिग्रेटिंग टू कैनेडा आफ्टर देयर 10+2, और 10+2 के बाद वो कहाँ आ रहे हैं? ज्यादातर GTA एरिया में, टोरंटो के आसपास के एरिया में, राइट। बट यहाँ पे PR लेना इज टू डिफिकल्ट। यहाँ पे पॉइंट सिस्टम है, द मोर एजुकेशन यू हैव, जितना ज्यादा बैंड स्कोर आपका होगा उतने ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे। अब अगर कोई स्टूडेंट +2 के बाद आ रहा है, दैट मीन्स वो यहाँ पे भी आके, डिग्री बहुत कम लोग करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज में आते हैं, तो उसके पॉइंट्स आपको नहीं मिलते हैं, बहुत कम पॉइंट्स मिलते हैं। और उसके बाद आपको आइल्स वगैरह में भी उतने ही मार्क्स लेने पड़ते हैं। पहले तो लोग कहते थे कि 8777 ले लीजिए, राइट, बट अब 8777 से भी काम नहीं बन रहा। तो अल्टीमेटली व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग इज ईदर दे वांट LMIA, जिसपे एम्प्लॉयर उनसे चार्ज भी करता है, राइट, एंड इट बिकम्स अ कॉस्टली मेथड। अब अगर आप वहां पे जाएंगे डायरेक्टली इन प्रोविंसेस में स्टडी वीजा के लिए, अगर आप अप्लाई करते हैं एंड यू हैव द स्टडी, यू कंप्लीट योर स्टडी, चांसेस आर कि ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है प्रोग्राम, या अगर आगे एक्सटेंड नहीं भी होगा, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर स्किल्ड वर्कर, इंटरमीडिएट कैटेगरी, यू नेवर नो, ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन एवरीथिंग is taking a toll, और कुछ भी फाइनल नहीं है। there will be changes in the immigration programs as well, क्योंकि लोग उतने इमिग्रेट नहीं हो रहे हैं जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है। तो यू कैन स्टिल थिंक कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, व्हाई नॉट गो टू डायरेक्टली दीज प्रोविंसेस जहाँ पे PR आपको इजीली मिल जाएगी, रादर देन 2 साल की आप यहाँ पढ़ाई करते हो, 1 साल वर्क परमिट, फिर टोरंटो में ही कहीं काम करते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि अभी तो मेरे PR के चांसेस नहीं है, तो मुझे कहीं और मूव होना चाहिए, राइट। So the thing that you should have done on the very first day when you have moved to Canada, जो चीज आपको पहले ही दिन कर लेनी चाहिए थी, वो आप अल्टीमेटली 4 साल बाद करते हो, राइट। So it becomes very difficult, क्योंकि तब आपका वर्क परमिट भी एक्सपायर होने वाला होता है और आप डिसीजंस ऐसे नहीं ले पाते हो कई बार, and it becomes very costly for you, because at the end of the day it's like by hook or by crook I want to be a PR, and you end up paying $40,000 $50,000 to lawyers, right? So it's a good thing if you decide, okay,
I want to study from Toronto, why? I want to study in Prince Edward Island, why? Right? So please keep these things in mind before you take any decision, right? So ये program specially उनके लिए है जो study permit पे +2 के बाद आना चाहते हैं, that it will always be a good decision अगर आप इन provinces में आओगे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा provinces में लोगों की कमी रहती है due to their population. That is why they have come up with such a program जहाँ पे language requirement भी कम है ताकि लोग इनके पास आए, right? So other provinces go by the point system, which makes it difficult for students who do not have a graduation degree back home. इसीलिए students who are coming after 10+2, you should make up your mind in this direction as well. आप अपने agent से consult कर सकते हैं, or you can ask me in the comments if you are interested or if you need more information on this. We cannot score much on the who cannot score much on their language test. This program is a blessing. Again, as I said, बाकी provinces में if you need to apply for PR, you need to at least go with 8777. आज के केस में वो भी possible नहीं है because the draw is very high. 474 something जा रहा है, और 474 is for people who have at least 3 years of work experience, जिनके पास master degree भी है, कनाडा से भी, बाहर से भी, और जिनका IELTS में स्कोर बहुत अच्छा है. सिर्फ वही लोग इतनी दूर तक पहुंच पा रहे हैं, right? So please think about it before you invest 15 to 20 lakhs in your study program, और उसके बाद आपको 15-20 लाख अगर और स्टडी पे लगाना पड़ रहा है या PR पे लगाना पड़ रहा है, then it's not a good decision. Please think of these provinces. And you can also contact us for more details on this program, and our next video will be for people who are outside India but वो PR लगा के आना चाहते हैं, but किसी ना किसी वजह से they cannot apply under express entry. For example, उनका band score नहीं आ रहा है, right? तो वो कैसे इस program का फायदा उठा सकते हैं. And then thank you for watching this video, and do not forget to like, share and subscribe. Bye bye, take care, see you in next video.